Yes. Okay. Okay. Visible? Yes, we can see. Okay. Okay. So, good evening to everyone, and hello to all of you. Good So, evening. Good evening. good evening. Hello. Good to see all of you. Or last time, I had spoken to Mr. Saleh about the session which I had on loneliness, and उसके बारे में there were two things which were there, and one thing was that the causes of loneliness need to be discussed in more detail. Okay, so I am going to emphasize and I am going to focus on that. And the second thing that he had told me was that I need to speak in Hindi and English both. So I am going to speak in Hinglish. Okay. Okay, so which generally हम लोगों की जो बोली भाषा होती है, so generally we use Hindi. Yeah, so is that okay? Yeah. Is Yes. that okay? Yes. Okay. Yeah. Okay. And Yeah. the other thing is, yeah, one more thing I wanted to say before I start my presentation is that at any point, if you feel that you want to share an experience, if you want to say anything about what you are facing, or maybe अगर आपको लगता है कि इस प्रकार से आपने loneliness को overcome किया है, so please feel free to unmute yourself and talk. ओके सो आप मतलब बेझिझक आप बोलिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज डू नॉट हेजिटेट. ओके तो काफी हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी रिगार्डिंग लोनलीनेस, व्हाट इट इज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लोनलीनेस, व्हाई इट इज कॉल्ड. तो ये बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर हो गया है, एंड ऑल्सो देर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च विच हैज बीन डन ऑन लोनलीनेस. So I am going to combine that with some of my personal experiences, and then I am going to discuss that with you. But our session can become more richer, it can become more enriched if you also have certain experiences to share. और अगर आपको लगता है कि ये करेंगे तो इससे लोनलीनेस ओवरकम हो सकता है, बिकॉज एज वी सेड दैट लोनलीनेस इज अ सब्जेक्टिव इमोशन. ये एक सब्जेक्टिव स्टेट है, तो इसके लिए हर एक की उसको फेस करने की जो क्षमता होगी या फिर जो कैपेबिलिटी होगी, एबिलिटी होगी, वो अलग अलग है. Okay, so now we'll go on to the presentation and we'll get straight into this now. Okay. Hello. Hello. Kindly put the first one on. The first three. It's okay to feel alone or lonely. What is the second one? My feelings are real. The one before this. Slides, you can go. Amrita, you can go on first slide. Yeah, No, so the this is my first one. slide, sorry. One before this. The first one. So I am going to come to that. That it's okay to feel lonely. So that is Yeah. more or less the The I think second second one. master. Yeah. My feelings are real. Yeah. So are you not able to see what I am seeing right now The on the first screen? one. The first one. It's gone off. Are you talking about this? Yeah. Now, yeah. Yeah. Okay. This is correct. So I'm so that will surely come. Okay. So पहले we can talk about basically understanding it, and how what are the different strategies through which we can overcome it. Okay. So ये please add whatever you feel is okay, and if you feel that it is getting heavy, और अगर आपको लगता है कि बहुत समझ मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ही पॉइंट पे आप मुझे रोक सकते हैं. ओके. तो सबसे पहले ओके ओवरकमिंग लोनलीनेस में व्हाट डू वी नीड टू सी. ओके कि ये लोनलीनेस किस प्रकार का है. ओके सो एम आई लैकिंग द बेसिक सोशल अपॉर्चुनिटीज विच आर देयर, इज दैट माय प्रॉब्लम, or is my problem that I am not feeling understood, listened to, or cared for. Okay, so what is the profile, क्या क्या मुझे हो रहा है. और जब तक मैं ये समझने की कोशिश नहीं करूंगी तो लोनलीनेस के साथ जूझना या फिर उसको ओवरकम करना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो मुझे लोगों के साथ, इफ आई डोंट हैव मेनी सोशल अपॉर्चुनिटीज, तो शुड आई go to club, should I go to a place where there are
अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इंटरैक्शन, तो वो मैं बोल रही हूँ। और मैं बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करती हूँ, बट आई डोंट फील एज if people are able to understand me. I do not feel that people listen to what I have to say. People do not value what I have to say, and people do not care what I have to say. ओके, तो ये क्या प्रॉब्लम क्या है? तो इसको हमको पहले समझने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, so that is the very first thing. Okay, it's overcoming loneliness. Okay, another thing is learning to be okay in my own company. ओके, वेन डायर काफी मतलब पॉजिटिव साइकोलॉजी के बड़े मतलब he has written a lot of books. So he has said that you cannot be lonely if you like the person you are with. That means I myself. Okay, so I cannot be lonely if I have formed a good connection with my own self, and if I am aware about what is causing my loneliness, और अगर मैं अपने ही कंपनी में अगर खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो फिर देन आई एम नॉट गोइंग टू फील लोनली। तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत इसमें काम करना पड़ेगा। व्हाट एम आई इंटरेस्टेड इन, मुझे क्या अच्छा लगता है, व्हाट आर द एक्टिविटीज विच इंटरेस्ट मी, व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल दैट आई वांट टू इंटरैक्ट विद। तो ये खुद ही के साथ हम लोगों को कुछ संवाद करना पड़ेगा, विच इज व्हाट वी कॉल सेल्फ टॉक। So basically what we are trying to say is that we should not be connecting with others out of desperation. Okay, just because I don't have a good connection with myself, just because I do not want to stay alone with myself, I just want to connect with others. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत साल पहले मैंने कोई एक बुक पढ़ी थी, एंड द नेम ऑफ दैट बुक वाज हाउ टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। और उसमें उन्होंने लिखा था कि एक्टर्स जनरली बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एक्टर्स जिनको बहुत सारा रिकग्निशन मिलता है, बहुत सारा फेम मिलता है, एंड जनरली एक्टर्स डू नॉट प्रेफर टू बी इन देयर ओन कंपनी, क्योंकि देन दे हैव टू गेट रियल, एंड देन मे बी सम दे माइट हैव टू आस्क देमसेल्फ सम हार्ड क्वेश्चन। तो हमेशा दे वांट टू बी घेराउड बाय, हमेशा they want to be surrounded by people who constantly praise them. Okay, so basically what I am trying to say is that when it comes to loneliness, there are certain steps, there are certain things which I myself also have to do. One is acknowledging, the other is I should not be connecting with others out of desperation. मैं अकेले नहीं रह सकती, मैं मुझे नहीं, I cannot stand it, I cannot tolerate being in my own company, and hence I am connecting to others. So if I do not have a connection with my own self, if I am not going to be aware of my own self, it is going to be difficult for me to connect with others also. Okay, so I have to be comfortable. I have to learn to be okay in my company also. Okay, so we will also get into this later. ये काफी मतलब इसके बारे में भी और ज्यादा बात करेंगे। इससे ही जुड़ा हुआ ये मुद्दा है कि a lot of research, a lot of studies have been done, and generally पहले क्या होता था, they said कि loneliness has been a big problem. Last time we said कि इतना बड़ा problem है कि UK has a minister for loneliness and whatever. So this problem has been taken seriously, और काफी इसके ऊपर रिसर्चेस हुए हैं, एंड जनरली दे थॉट के इसके लिए सोशल इंटरैक्शन के लिए लोगों को अपॉर्चुनिटीज दो, उनको कुछ करने के लिए दो, लोगों के साथ उनको मिलाओ। So they thought that that is the way to ward off, or that is the way to prevent loneliness. But recent research which has been done, they said कि सिर्फ लोगों के साथ interaction करके फायदा नहीं है. What you also need to deal with is maladaptive social cognition. यानी क्या?
यानी I need to focus inward and address the negative thoughts that underlie loneliness. ये loneliness किस किस वजह से है? Okay, so basically looking at negative thoughts about self-worth and how others perceive you. Okay, so how I perceive myself and how others perceive me. And generally ऐसा देखा जाता है कि people maybe who have these issues of loneliness will be very sensitive or will be very touchy when it comes to interacting with others. ओके सो अगर मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ तो अगर मुझे लगा इफ आई परसीव दैट दैट पर्सन इज क्रिटिसाइजिंग मी, दैट पर्सन इज डिसअग्रीइंग विथ मी, so then basically what I will feel that I am not liked by this person and then I should not be interacting with him. No one likes me. So that is the conclusion I will come to, and then I will also say to myself that because no one likes me, what is the use of going out and talking to people? कल ना मच्छी लाना, मच्छी क्या सब्जी लाना. So I basically, they said that rather than presenting opportunities for social interaction, for social support, अगर हमको ये लोनलीनेस वॉर्ड ऑफ करना है तो थोड़ा बहुत अपने भीतर देखना पड़ेगा. वी विल हैव टू फोकस इनवर्ड एंड ट्राई एंड ये जो हमारे फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ है, व्हाट डू आई फील अबाउट माई सेल्फ एंड हाउ अदर्स परसीव मी. तो इसके बारे में मुझे खुद इसके बारे में सोचना पड़ेगा एंड ये नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड टू provide opportunities for that, or maybe a person needs to get into therapy regarding what are my negative thoughts. और एक बार आपको पता चल गया and if you feel that कि आपका वर्क क्या है, तो फिर then it might be easier for you to interact with others also. ओके सो ये जो निगेटिव थॉट्स हैं, तो ये निगेटिव थॉट्स का क्या ये होता है, निगेटिव थॉट्स जो है दे बेसिकली वी परसीव दैट दे आर फैक्ट. अभी समझो आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी ने समझो आपको इफ समवन डज नॉट talk to you, someone maybe suppose someone looks at you but they do not talk to you, someone maybe who's an acquaintance whom you know and whatever, so that person does not talk to you. तो आपको क्या लगेगा, अरे कितना एरोगेंट है ये आदमी, that he is not even talking to me. And then you will feel that okay, there is no point in talking to that person, there is no point in talking to anyone because people do not consider me important or they do not pay attention to me. ओके तो ये जो निगेटिव थॉट्स हैं, तो इनको कहीं ना कहीं पहले हम लोगों को ये सच है क्या, व्हाट इज माय ओन सेल्फ वर्थ. और ये जो मैं बोल रही हूँ कि दूसरे लोग मुझे इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच इज देयर. it is very much possible that that person might be occupied with something. It is very much possible that उन्होंने आपको देखा नहीं होगा. It is very much possible कि he might be preoccupied with something that is going on in his workplace or in his home. तो ये हम लोग जनरली ये सब चीजों को हम लोग जनरली ये टेस्ट नहीं करते हैं एंड वी जस्ट अज्यूम कि ये people do not talk to me, people do not value me, people do not consider me as important, and that is why I should not make any effort for social interaction. तो इसके लिए लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के पहले एक तो मेरा खुद के साथ मेरा कनेक्शन कैसा है, मेरा खुद के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है, एंड once I address my own thoughts and feelings about self-worth, and once I accept myself, then it is much more easier to interact with others. And that is why time and again research has said कि पहले लोगों के पास जाने से पहले
पहले खुद को जांचो, पहले खुद को देखो कि क्या प्रॉब्लम्स है, एंड देन मे बी यू कैन गो एंड इंटरैक्ट विथ अदर्स. Okay, so this maladaptive means what? Something that is not adaptive. Social cognition, मतलब जब भी आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो तभी कॉग्निशन इज व्हाट? थिंकिंग. आपकी थिंकिंग कैसी है? पहले ही अगर मैं अपने एजम्पशंस करती रहूंगी कि भाई वो लोग मेरे को चाहते ही नहीं, वो लोग मेरे को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं, तो ये सच है क्या? इज इट द रियलिटी और एम आई मेकिंग अप माई ओन अजम्पशन? इज समथिंग दैट आई नीड टू टेस्ट आउट. तो ये सब जो मेरे नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले आइदर आई टॉक टू समवन, और मे बी मैं किसी काउंसलर के पास जा सकती हूँ, या फिर मे बी आई गो इनटू थेरेपी और व्हाट. बट दीज क्वेश्चंस नीड टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट बिफोर गोइंग टू पीपल. एंड जनरली ये हम लोगों को लगता है ना, लोनलीनेस दूसरे लोगों को आके मेरा लोनलीनेस ठीक करना चाहिए. तो research has said, and a lot of studies have said, that the person who is feeling lonely first has to make some effort. And unless and until they make those efforts, आगे जाना या फिर दूसरों के साथ भी कनेक्शन बनाना मुश्किल हो जाएगा. And that is why this maladaptive social cognition needs to be taken into consideration. दूसरा ये है कि अनदर स्ट्रैटेजी विच हैज बीन जो बताई गई है इज वॉलंटियरिंग. अभी आप कहोगे कि मेरे को ही खुद अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जाके कहाँ से वॉलंटियर करूँगी. So you know there is this organization called 60 and Me. So I was reading about that. और वहाँ पे उन्होंने मतलब that lady who started this organization, she said that when it comes to loneliness, the main problem is not that I cannot interact well with people, that there is no meaningful interaction. That is not the main problem. What is the main problem? मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि आई नीड इंटीमेसी. इंटीमेसी यानी द फिजिकल इंटीमेसी या फिर रोमांटिक इंटीमेसी की मैं बात नहीं कर रही. आई हैव द नीड टू फील नीडेड. आई वॉन्ट टू फील नीडेड कि किसी को मेरी जरूरत है. someone is valuing me. And she says, that lady says, who started this organization called 60 and Me. So she says that the powerful antidote to loneliness, यानी the powerful cure to loneliness is the opportunity to be needed, and that is why volunteering works. And she has given a very beautiful example where she says that it is basically having people in your life that need you as much as you need them. And she says that अब अगर हम लोग स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं, मेरे कम्युनिटी में समझो कोई स्टूडेंट है, उनको अगर समझो कोई एक ओल्डर अडल्ट उनको जाके समझाता है या फिर कुछ सिखाता है, इंग्लिश सिखा सकते हैं, मैथ सिखा सकते हैं. तो शी सेज दैट mentoring even one student, I'm saying even one student teaches us about our own importance in the world. Okay, so mentoring, I'm repeating this, mentoring even one student teaches us about our own importance in this world. And that is how your need for intimacy, कि कोई किसी को मेरी जरूरत है, ये जो गैप हम लोग को लगता है, तो उसको फिलअप करने के लिए अगर आप बच्चों के साथ या फिर समझो फिजिकली मेंटली चैलेंज जो लोग हैं उनके साथ अगर वॉलंटियरिंग आप करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी हम लोगों को उतना ही, अगर हम लोग सच में उनके साथ काम कर रहे हैं तो वो लोग भी हमको उतना ही प्यार देते हैं, या फिर we also form that kind of bond with them. And this is the bond, this is that intimacy which helps getting up in the morning and going to them and feeling that I am
ओके થઈ ગયો તો Okay. તો કવિતા હોય તો ખણીએ તો આ કરી ના બુદ્ધાડી કઈ માં ટેમ્પુ વજને આ તો કે ડીંદી વેનો હજુ છે Mute. Okay, so the main, they are saying that the main problem is I want the opportunity, or I want to be needed by someone. And how will you do it? Volunteering is definitely a very good way of doing that. So you can see what your interests are, और अगर सच में आपको वो ग्रुप के साथ इंटरेस्ट है, फिजिकली चैलेंज्ड है, एनिमल्स है, वॉट एवर यू फील दैट आपको ये इसमें ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ये लोगों के साथ आपको वॉलंटियर करने में इंटरेस्ट है, तो देन वंस यू फॉर्म दैट बॉन्ड विद देम, तो फिर आपको भी अच्छा लगेगा, एंड इट इज दिस बॉन्ड, it is this intimacy which is there, which will help you in feeling happy or maybe looking forward to something. And that is why time and again volunteering has been considered to be a very good way of forming meaningful connections with people. Okay, so another thing which they have said is that you can do volunteering on your own terms. ओके, तो यहाँ पे आपको जब भी चाहिए आप वॉलंटियर कर सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं है. यू कैन वॉलंटियर एट योर ओन टाइम. ओके, एंड you can go to the organization. You might have to wait for some time, but you can go to the organization. You can tell them that these are the basic skill sets which I have, and maybe I want to volunteer for 4 hours in a week. ओके, सो ये मतलब वो हिसाब से काफी ईजियर है कि यू कैन कंट्रीब्यूट समथिंग, एंड इफ यू आर एबल टू फॉर्म दैट बॉन्ड विद दोज पीपल, देन आपको ही अच्छा लगेगा, एंड आपको लगेगा कि वो लोगों को भी मेरी जरूरत है. एंड वंस दैट फीलिंग कम्स इट, देन अगेन वो जो जीने का जो उत्साह है वो वापस आ सकता है. ओके, सो वॉलंटियरिंग करना बहुत जरूरी है. Okay, and another thing, they have also said that when it comes to volunteering, it will allow you to also interact with people of different generations. तो अगर आप समझो कोई संस्था में जाएंगे या फिर कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कोई भी संस्था में जाएंगे, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल दैट यू विल इंटरैक्ट विद यंगर पीपल. तो यंगर पीपल के साथ इंटरैक्ट जब भी आप करेंगे, तो आप लोग भी उनको कुछ सिखा सकते हैं और आप लोग भी उनसे कुछ सीख सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल आप देखेंगे आपको मतलब जो बच्चे हैं तो वो इतने टेक्नोलॉजी सैवी हैं कि 4 या 5 साल का बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है अबाउट टेक्नोलॉजी, अबाउट मोबाइल फोन्स, अबाउट लैपटॉप्स, अबाउट टैब्स. तो ये जब भी एक्सचेंज होगा 2 जनरेशन्स में, अलग अलग जनरेशन्स के लोगों के साथ, तभी भी आपको अच्छा लग सकता है, एंड यू विल गेट दैट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, वेलबींग एंड हैप्पीनेस. तो वॉलंटियरिंग के दे से दैट बहुत सारे फायदे हैं, और ये बहुत सारे फायदे हैं, इसके लिए हम लोगों को वो, अगर आप ऑलरेडी नहीं करते हैं तो उसको आपको ट्राई आउट करना चाहिए. ग्रैटिट्यूड इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और ये ग्रैटिट्यूड का क्या ये है, इसके बारे में शायद आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जाना नहीं है. बट बेसिकली ग्रैटिट्यूड हम लोग जब भी when we feel that that I have a lot to be thankful about, तो तभी there is an affirmation of goodness, that there is something positive in my life, जिसके वजह से आज मैं यहाँ तक आई हूँ, या फिर जिसके वजह से मैं फंक्शन कर पा रही हूँ. Either it can be people, either it can be your good health, either it can be the positive habits that you have formed over a period of time, whatever it is. So there is
some affirmation of goodness, and which is what we require. और ये goodness कहाँ से आया है? Where has this goodness come from? It has either come from your own positive traits, जो आपने अभी तक इतने सालों में जो खुद अच्छा किया है, and it has come when you try and think about this कि ये goodness आया कहाँ से है. तो from your own self आपने जो अच्छी चीजें अभी तक की हैं, for your own self, for your family, for others जो किया है, and at the same time we are going to acknowledge that I mean it is not possible to do these things on your own. तो इसके लिए आपके फैमिली का भी सपोर्ट होगा, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट होगा, दूसरे किसी जो लोगों को आप समझो इतना अच्छे तरह से जानते नहीं है उनका भी सपोर्ट होगा. तो किसी ना किसी का इसमें सपोर्ट है. एंड दैट इज वाई ये ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है. Okay, for telling myself that there is this goodness which is there. There is this goodness which is there in me, and there is this goodness which is there in other people also, and because of which I am here. Okay, and that is why gratitude is extremely important. How to cultivate gratitude? Okay, so gratitude काफी सारे रिसर्च में दिया है that you know gratitude journal has to be there, that it helps you in developing more grateful thinking. Gratitude journal यानी क्या? Some people might do it on a regular basis, या फिर कई लोग उसको हफ्ते में एक बार लिख सकते हैं, महीने में एक बार लिख सकते हैं, whatever you are comfortable with. But basically it helps in developing more grateful thinking. Okay, what is working positive in my life? What am I doing well in my life? Who are the people who are helping me in my life? Who are the, maybe for, if it comes to your own health, which are the doctors which are helping me to be in good health? Who are the friends who are helping me to be cheerful? Okay, so gratitude journal करना बहुत important है, ऐसा रिसर्च में बार बार कहा गया है. Things for which I am thankful. Okay, and practice it on a regular basis. ऐसा नहीं कि एक बार लिखा और फिर साल में देखा ही नहीं, ऐसा नहीं. रेगुलर बेसिस पे जैसा आपको ठीक लगता है आपको वो हिसाब से उसमें इनपुट्स डालने चाहिए. There is another interesting this you know about gratitude jars. और ये gratitude jars क्या थे? There is this lady who started this experiment जहाँ पे she wanted to train her children about gratitude. And what did she do? उन्होंने क्या किया कि वो jars रखते थे और वो at the end of the day she used to put some change in those jars. Put some change पैसे कुछ रखते थे उसमें, and at the end of the month whatever money has been collected वो किसी charity को देते थे. And then she used to feel that I feel a lot of gratitude for the fact that I am able to contribute, and this is because of that habit which I have inculcated of you know collecting that change and then giving it to charity. So ये gratitude jar था उनका. So collecting money at the end of the day and then giving that to charity. Another thing is that difficult situations and people help us to grow and develop. मदर टेरेसा ने कहा था कि it is because of those homeless and destitute people that she grew as a person and she was able to develop spiritually because of the kind of people that she looked after and cared for. तो ये जो है हम लोग क्या ये करते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे जिंदगी में क्यों है? तो they are saying that it is only because of difficult situations that we are able to grow and develop. ओके तो ये अगर मेरे इसमें वो प्रॉब्लम्स नहीं, मेरे अगर समझो इफ माय बॉस, मेरे जो बॉस हैं वो कभी अगर मुझे डांटेंगे नहीं, एंड इफ ही इज ऑलवेज
हमेशा अगर समझो मुझे अच्छी चीजें ही बोलते रहेंगे तो मेरी ग्रोथ होना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी मैं किसी डिफिकल्ट आदमी के साथ इंटरैक्ट करती हूँ तभी आई कैन डेवलप थिंग्स लाइक पेशेंस। ओके, कि किसी के साथ मुझे पेशेंस रखने की जरूरत है, किसी को मुझे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड पीपल इन लाइफ आर आल्सो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक मराठी में एक बुक है एंड उन्होंने द नेम ऑफ दैट बुक इज माझा साक्षात्कारी हृदय रोग। तो उन्होंने उसमें कहा है कि माय बेनिफिशियल हृदय रोग इज हार्ट प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा है कि माय बेनिफिशियल हार्ट प्रॉब्लम। तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि ये हार्ट प्रॉब्लम मेरे को क्यों है, आई एम द ओनली वन हु इज फेसिंग इट, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो इसके वजह से उनको क्या क्या उनको रियलाइजेशन हुए बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। तो ये अगर हमारा पर्सपेक्टिव होगा, ये अगर हमारा सोचने का नजरिया होगा तो फिर हम लोग बहुत चीजें हम लोग कर सकते हैं। बट ये एक तो ये ग्रेटिट्यूड करना मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है। ये मुझे नहीं मिला, ऐसा मुझे नहीं हुआ, ये मेरे से अच्छा बात नहीं करता है। तो ये एटीट्यूड है। तो ये इससे अगर थोड़ा बहुत हम लोग इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं इसके ऊपर, so then we will be able to develop gratitude also. Yeah, and you know, one example I would like to give you, the fact that I have I am working with older adults only because in my childhood, the situations that I have faced in my life, I have faced a lot of rejection. And because of that rejection, I, to some extent, to whatever extent is possible, I can identify with older adults. I can relate to older adults. And I can try and understand the kind of rejection that they feel. And it is only because I went through that difficult situation myself that I understand कि ये अगर आप किसी बुजुर्ग को पास में बिठाते नहीं हैं, आप अगर किसी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो उनको क्या लगता है। So that is why I feel that my experiences of rejection have been very important. If it wouldn't have been for them, I don't know what else I would have done, or which maybe career path I might have chosen. But certainly not this. ओके, सो इसके लिए हमारे डिफिकल्ट सिचुएशंस भी बहुत जरूरी हैं हमारे लिए। ओके, टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स, और ये लास्ट टाइम मैंने पॉइंट ये किया था बट वी डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट, और ज़्यादा टाइम हम लोगों को नहीं मिला था इसको ये करने के लिए। तो इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी इसके ऊपर हैं। तो ये टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो स्ट्रेंजर्स मतलब मैं जिसको जानती नहीं हूँ या फिर जो मेरे अक्वेंटेंसेस हैं जिनको मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। तो आई व्हाट आई मीन बाय स्ट्रेंजर्स, जिनके साथ आपका कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोग। तो ये कनेक्शन मतलब दूसरे लोगों के साथ कभी हो पाएंगे जब भी हम लोग वो जो स्मॉल टॉक होता है ना कि भाई ऐसा है वैसा है, ये मतलब मैंने यहाँ से ये खरीदी किया था, मैंने वहाँ से वो खरीदी किया था, वेदर आज ऐसा है। तो ये जो स्मॉल टॉक है उसके आगे जाके when both individuals feel comfortable to address things that are not working well. Okay, so basically what we are saying that when you talk to strangers, जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं या फिर समझो आप अपने दूध वाले से भी बात करते हैं या फिर आप अपने भाजी वाले से भी बात करते हैं,
तो तभी आपको पता चलता है। और ये पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा है कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज आए हैं, and we have gone through similar struggles. And when I feel that I have gone through a similar struggle like that other person, then वो connection हो जाता है दूसरे आदमी के साथ। सिर्फ मुझे अच्छा है, आपको अच्छा है, सिर्फ बोल के कनेक्शन नहीं होता है। जब भी हम लोग हमारी जिसको हम लोग इंग्लिश में शेयर्ड वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, कि आई एम ऑल्सो वल्नरेबल, यू आर ऑल्सो वल्नरेबल, हम लोग दोनों को प्रॉब्लम्स हैं, और वो जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स लोगों की समझने की भी कोशिश करते हैं, तभी वो कनेक्शन बॉन्डिंग बिल्ड हो पाएगा। और ये सब सिर्फ हम अपनों के साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एटलीस्ट वो अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा लोगों के साथ, जिसके साथ आपको लगता है कि आप बातचीत कर सकते हैं, और वो बाकी वाला भी हो सकता है। ओके, तो इसमें मतलब क्लास की कोई बात नहीं है। आपको अगर लगता है कि इसके साथ मैं अपना मतलब क्या बोलते हैं, इसके साथ में अगर अपना जो कुछ भी मेरे फीलिंग्स है मैं शेयर कर सकती हूँ, तो then that connection is built. And what we are looking for is that emotional connection, the fact that I want to share something. ओके, और ये मैं आपको एग्जांपल एक देती हूँ कि ये पुलिस ने 1090 करके काफी सालों पहले, आई थिंक 2007 से 2010-11 तक, they had started this helpline for called the number of which was 1090, especially for senior citizens. और वहाँ के जो हम लोग हेडक्वार्टर्स में गए थे, पुलिस के हेडक्वार्टर्स में हम लोग गए थे, और वहाँ पे हम लोगों ने जब भी देखा था, तो पुलिस ने बोला था कि वो लोगों को कंपलसरी था कि सीनियर सिटीजन्स जो अकेले रहते हैं, एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस, दैट दे नीड टू गो एंड विजिट सीनियर सिटीजन्स हु आर लिविंग इन देयर ओन, जो उनके जुरिस्डिक्शन में आता है, वहाँ पे जाके उनको सीनियर सिटीजन्स को विजिट करना है। काफी सारे जो कांस्टेबल्स थे, उन्होंने ये बोला था कि हम लोग जब भी जाते हैं सीनियर सिटीजन्स के पास, तो वो लोग इतना बात करते हैं कि, और हम लोग भी उनके साथ बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द constables also ended up forming connections with the senior citizens, और ऐसे ही जाके उनके साथ वो लोग बात करते थे। तो ये कांस्टेबल तो नोन नहीं है, पुलिस के बारे में हम लोगों को काफी डर भी होता है। तो ये अगर सच में आपको लगता है कि ये आदमी से मैं बातचीत कर सकती हूँ, मेरे दिल की बात अगर मैं शेयर कर सकती हूँ, तो उसके लिए कोई क्लास की या फिर कोई मेरा फ्रेंड ही होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ओके, और वो कनेक्शन भी बिल्ड करना, वो भी थोड़ी बहुत मेरी जिम्मे। इफ आई एम नॉट गोइंग टू ओपन अप बिफोर एनीवन, मुझे भी वो आदमी के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। इफ आई से कि नहीं, मुझे कुछ शेयर नहीं करना है, आई वांट दैट पर्सन टू शेयर, देन दिस कनेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी बिल्ड। So so basically you also have to share your feelings, what you think as a person with brutal honesty. तो आपको भी वो शेयरिंग के लिए आपको भी वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो ही आप लोगों के पास में जा सकते हैं। तो वो इनिशिएटिव आपको भी लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कुछ आएगा नहीं, या फिर कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है, इसलिए आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा। ये की है टी विद स्ट्रेंजर्स करके एक संस्था है जो यूएस में उन्होंने खोली है। तो वहाँ पे जनरली दे हैव, उन्होंने करीब, आई थिंक इज एवरीवन म्यूटेड और okay, so there is this initiative
Amrita, no voice, no sound. Yeah, ओके सो दिस टी विद स्ट्रेंजर्स एक संस्था है तो जो यूएस में Now, स्टार्ट okay. हुई है. तो वो जनरली दे हैव अ होस्ट विच इज ट्रेन्ड एंड दे हैव अ ग्रुप ऑफ 6 people all strangers and they have meaningful conversation. Okay, so this host is trained in making people talk and share things. So basically tea with strangers इसमें जो उनका राइट अप है उसमें भी यही लिखा है कि जो आदमी को लोनलीनेस जो फील हो रहा है तो उनको भी अपने फीलिंग शेयर करने के लिए ऑनेस्टली जो हो रहा है वो बताने के लिए खुद के साथ ऑनेस्ट होने के लिए और दूसरे लोगों के साथ ऑनेस्ट होने के लिए भी खुद प्रयत्न थोड़ा बहुत करना पड़ेगा. Okay, so this tea with strangers is also a group of all strangers, but they connect. तो इसके लिए हम लोग स्ट्रेंजर्स के साथ कनेक्शंस नहीं बना पाएंगे ऐसा जो हमारे दिमाग में है वो मुझे लगता है सही नहीं है. ओके, टिप्स फॉर टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स. ओके, कैसे करेंगे? लास्ट टाइम भी आई थिंक मिस्टर सालिह हैड आस्क्ड मी कि कैसे करें. किसी को दिक्कत आती होगी कि भाई मैं कैसे कैसे कॉन्वर्सेशन में स्टार्ट करूं. ओके, सो बेसिकली कॉन्वर्सेशन इज मोर अबाउट लिसनिंग देन टॉकिंग और ये रिसर्च में दिया गया है. Okay, so asking some relevant questions, and we know that people generally like to talk about themselves. Everyone likes to talk about themselves. Okay, and I think Epictetus, the very noted philosopher, had said that why do we have 2 ears and 1 mouth? Because we are expected to listen more, twice as much than what we speak. तो इसके लिए अगर हम लोग सच में सुनने के लिए तैयार हैं तो वी विल बी एबल टू फॉर्म और वी विल बी एबल टू स्ट्राइक दैट कॉन्वर्सेशन. ओके, सो बेसिकली आप लोगों को वो क्या करते हैं इसके बारे में अगर पूछेंगे, ओके, एंड नॉट जस्ट लीव इट एट दैट. आप सिर्फ क्या करते हैं तो ठीक है मैं ये करता हूँ, ये ऑफिस में मैं काम करता हूँ, बट अगर वो कौन से प्रोफेशन में है और वो प्रोफेशन में उनकी क्या दिक्कतें हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस और डिफिकल्टीज दैट दे फेस इन देयर प्रोफेशन. अगर आप समझो एक भाजी वाले को पूछते हैं कि उनको क्या दिक्कत आती है, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, जाके समझो जागर में जाके वो लोग भाजी लाते हैं, तो क्या उनको दिक्कतें जब भी आती है, जब भी आपको पता चलता है कि वो आदमी शायद मेरे से ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स हैं और तभी मुझे लग सकता है कि भाई मैं जो फेस कर रही हूँ शायद वो उसके सामने बहुत शायद कम है. तो इसके लिए लोगों के पास भी देखना, लोग क्या फेस कर रहे हैं, लोग क्या स्ट्रगल किसके साथ कर रहे हैं, ये भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, सो हाउ डू यू थिंक क्लिक अहेड. अगर यही आप चीजें किसी आदमी को पूछेंगे कि भाई तेरे को तेरे काम में क्या चैलेंजेस आते हैं, आप गृहिणी को एक होम मेकर के पूछेंगे कि आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, हाउ डू थिंग्स लुक अहेड. आप किसी समझो एक ऑफिस वाले इसमें कोई समझो शेयर मार्केट में काम करता है, कैसे आगे आपको कैसे लगता है कैसे चीजें चलने वाली हैं, तो पीपल विल टॉक एंड देन आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कनेक्ट करने वाली कोई चीजें हैं या नहीं. Okay, so these are some tips. Okay, so overcoming loneliness, I'm just going to go through, I think it's 6-4. तो ये जो है, we need to create a list of activities that we can do by ourselves. And basically what we are trying to say, you can choose puzzles या कुछ भी हो, games on the phone or whatever. जो कुछ भी आपको लगता है कि ये मैं अकेली पढ़ना, whatever, आप जो अकेले कर सकते हैं. Loneliness can be used as an opportunity. yes. Loneliness needs to be used as an opportunity to know about myself better. Yeah. Not constantly consider it as a problem. That's what I'm Yeah. trying to say. Okay, so look for activities where you can be alone with other people. तो ये जो है आप समझो कोई ग्रुप समझो ज्वाइन कर सकते हैं और काफी सारी चीजों में मतलब काफी सारे ग्रुप्स में अगर समझो वो आप फ्रेंडशिप भी समझो पहले ये आपने ये नहीं किया तो भी काफी सारे लोगों को अच्छा लगता है कि मेरे साथ में सब लोग हैं. I feel good that there are other people who are there with me, so they feel good.
So you can do that as well. You know, you see a lot of older adults जो समझो अकेले रहते हैं, उनके टीवी ऑन रहते हैं, हमें काफी टाइम टीवी ऑन रहते हैं. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरे साथ मेरे घर में कोई है. तो इसके लिए लुक फॉर एक्टिविटीज वेयर जहाँ पे समझो आपको एकदम ही कनेक्शन की ये नहीं, पर अगर आपको लगता है कि मेरे आसपास लोग होने चाहिए, तो आप वैसे भी एक्टिविटीज ये कर सकते हैं. तो इसके लिए खुद को जांचना, मुझे क्या अच्छा लगता है और मुझे भी क्या एफर्ट्स करने हैं, ये देखना इम्पोर्टेंट है. कोई मैजिक सॉल्यूशंस नहीं है, ऐसा मुझे लगता है. ओके, एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन मी अलोन. मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये करना चाहती हूँ. तो ये जब तक आप करेंगे और दूसरे लोगों को भी आप देखेंगे, तभी हमको पता चलेगा that shared vulnerability is there, that shared struggle is there. और ये शेयर्ड स्ट्रगल जब भी हम लोग एक दूसरे का समझने की कोशिश करेंगे, तभी वो कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा. ओके, जनरेट अ सेंस ऑफ ऑ, क्यूरोसिटी. ऐसा क्यों है? मुझे भी लगता है, मतलब कॉन्स्टेंटली मैं जो इसमें काम करती हूँ, मुझे लगता है कि स्ट्रेंजर्स के साथ ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है, वॉलंटियरिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है. तो ये जो कॉन्स्टेंटली है कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, so maintaining that curiosity is also important. Okay, if you want to get out of those negative emotions, so इसके लिए ये sense of awe, curiosity is extremely important. Another, this is spend money on experiences rather than just things. Okay, तो ये अगर आपको लगता है कि if you want to go for a play and watch it, so that will be an experience which you will cherish. और आपको लगेगा कि भाई ये मेमोरी मतलब बहुत अच्छी है, and maybe I can think about it even later on. So it's a pleasant memory, basically. So, you know, one memory which I had, and I was very uncomfortable, you know, with seeing a movie alone. Generally, हम लोग अकेले ये नहीं करना, मतलब हम लोग बहुत uncomfortable होते हैं. So there is one movie, मतलब I think it was Three Idiots or something, and we were not getting the tickets or something. और मैं वो वहाँ पे गई थी, and मैंने वो मूवी खुद देखी. तो मतलब that is an experience which I cherish. So it is important to spend money on different kinds of experiences for yourself. The other is create a vision or purpose board. One thing which older adults face is कि I don't have anything to look forward to. और इसके वजह से ये पर्पस बोर्ड, मुझे क्या करना है, आगे जाके मुझे क्या करने में इंटरेस्ट है, तो इसके लिए ये एक पर्पस बोर्ड होना बहुत जरूरी है. Okay, so and I think I have given you examples. I also told you about this lady called Harbhajan Kaur, so who started her entrepreneurial उनका जो business था, she started that at the age of 90. बेसन की बर्फी का उन्होंने बिजनेस शुरू किया, हरभजन कौर, इन चंडीगढ़. And this lady had not earned her own money till the age of 90. She shared with her daughter that she regretted this and she started this बेसन की बर्फी का बिजनेस. और करीब 4-5 सालों में वो बेसन के बर्फी का बिजनेस इतना ग्रो हुआ कि आनंद महिंद्रा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने कहा कि उनको जो हरभजन कौर को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का उनको टाइटल मिला. तो बेसिकली क्या पर्पस है, क्या मुझे करना है, और जब भी ये पर्पस आपके सामने रहेगा, तो ये लोनलीनेस और ये सब जो कॉन्सिक्वेंट जो फीलिंग्स है वो आना थोड़ा मुश्किल है. तो खुद को क्या अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है और दूसरों के लिए भी कुछ करना इम्पोर्टेंट है. सिर्फ मुझे ऐसा लगता है, मैं ये फेस कर रही हूँ, मैं ये फेस कर रही हूँ, तो ये करके बात नहीं बनेगी. आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, और कुछ खुद के लिए और कुछ दूसरों के लिए भी करना पड़ेगा. इससे आपको सेटिस्फैक्शन और वेलबींग हो सकता है. ओके, तो सप्लीमेंट ऑनलाइन चैट्स विद मीटअप्स. सब लोग अभी ऑनलाइन रहते हैं, पर सिर्फ चैटिंग करने से अच्छा वो व्यक्ति से आपको मिलना भी उतना ही जरूरी है. ओनली चैटिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प,
और धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी बहुत अभी ओपन अप हो रही है, तो इट इज पॉसिबल टू गो एंड मीट पीपल ऑल्सो, एंड इफ यू फील दैट इफ मतलब प्रॉपर प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन, तो आप लोगों को भी जाके अभी धीरे धीरे मिल सकते हैं एज द सिचुएशन थोड़ी बहुत अभी सुधर रही है. Okay, so this I think madam was asking me, loneliness is okay. It's okay because all of us have felt alone or lonely at some point in our life. Okay, and what we are referring to, जिसको हम chronic loneliness बोलते हैं, वो अगर होता है तो फिर उसके लिए आपको मतलब ज़्यादा स्टेप्स भी उठाने की ज़रूरत है या फिर किसी काउंसलर के साथ बात करने की ज़रूरत है. और ये अगर होता है तो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी परिणाम हो सकता है. ओके, बट लोनलीनेस होना तो ये स्वाभाविक बात है और बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ऐसे लोनलीनेस फेस ही नहीं किया होगा. सो इट्स ओके, बट व्हाट एम आई डूइंग अबाउट इट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट issue. So my feelings are real, but not necessarily my only reality. Okay, so my feelings which are there right now don't define me or don't define my whole life as a person. My feelings are real. At this point of time, I am feeling sad. I am feeling that no one cares for me. But उसको ही अपनी reality मान लेना, इसको कहीं ना कहीं हम लोगों को जांच लेना और इसके ऊपर हम लोगों को रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है. आई एम नॉट अलोन इन फीलिंग लोनली. तो ये जो हम लोग शेयर्ड स्ट्रगल की बात कर रहे थे, शेयर्ड वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो इसमें मैं बोल रही हूँ कि आपको भी लोगों के साथ ऑनेस्ट होके आपको भी उनके साथ शेयरिंग करना पड़ेगा, देखने के लिए कि हमारे में कनेक्शन है या नहीं. दूसरा ये है कि आई कैन मेक माई लोनलीनेस काउंट. मतलब I feel that because I have also felt lonely in the past, because I personally have felt lonely, I personally have undergone rejection, I can make my loneliness count. I can identify with those feelings, and because of that I can also relate to some extent कि एक lonely व्यक्ति को कैसे लगता होगा. तो I can try and build value out of my negative emotions also. So I can make my loneliness count. इससे कुछ अगर हम लोग कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ करते हैं, तो then I can make my loneliness count positively in some way. So because ये अगर नहीं होता तो शायद मैं वृद्धों के साथ काम नहीं करती, ऐसा मुझे लगता है. Okay, so just quickly, do we have just 5 minutes? You've gone over time. Okay, so I think then in case you want to share something or this week, we can have 2 minutes for that, or maybe we can end. Yes. एक सिर्फ आपको मैं ये बोलती हूँ कि एक छोटा सा शेर था, मतलब मुझे बराबर से याद नहीं है, बट उसमें ऐसा कहा गया है कि हमारी अगर नज़र, जो समझो नज़र ठीक नहीं है तो इसके लिए मैं स्पेक्स पहनती हूँ, तो मेरी अगर नज़र ठीक नहीं है तो इसके लिए बहुत सारा इलाज मुमकिन है. तो नज़र ठीक करने के लिए तो इलाज मुमकिन है, पर नज़रिया अगर ठीक नहीं होगा तो क्या करोगे? True. नज़रिया का क्या करोगे? तो ये नज़रिया ही बहुत इम्पोर्टेंट. अमृता, I feel that अगर हम किसी से अपनी बातें शेयर करते हैं तो वो मन की बात एक तरह से जग की बात बन जाती है. तो मुझे ऐसा लगता है अभी मेरे अपने अनुभव एक्सपीरियंसेस से कि अकेलापन जब होता है, लोनलीनेस होती है, तो हम अपने खुद के कामों के द्वारा ही मेडिटेशन करें या योगा करें या बुक्स पढ़ें या राइट अप करें, जो भी काम कर रहे हैं, तो ही हम दूर कर सकते हैं. हमेशा हम दूसरे से शेयर नहीं कर सकते हैं इस एज में. सीनियर सिटीजन तो खास तौर से, जैसा आपने बोला है, सब्जी वाले के साथ या दूध वाले के साथ, बट
in Mumbai, it's not good to talk with these people. आप अकेले हैं और आपने किसी से शेयर किया तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है. नहीं. That is true, I think. आप लोगों का क्या है सुझाव? आप बाकी जो सीनियर्स हैं, मेरा ये है कि हम अपने आप से ही सिर्फ जो फ्रेंड्स हैं ठीक है, जैसे डेली 1 आवर हम अभी बैठ रहे हैं, मॉर्निंग मेरा एक ग्रुप है, मैं उसमें ग्रुप में जाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने में ही व्यस्त रहना पड़ेगा. तो ये अगर आपको वैसा ठीक लगता है तो मतलब वो सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है. और ये अगर समझो आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल है कुछ शेयर करने में, तो आप वो कर सकते हैं. हाँ, तो ये मतलब ये हर एक व्यक्ति की बात है एंड ये रिलेटिव है हर एक व्यक्ति के लिए. So if you are not going to feel comfortable talking to a भाजी वाला और whatever, strangers, तो गहरा कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है. Vulnerable, they are dangerous for us. Yeah. Because we are staying alone. हाँ, तो ये you're staying alone, तो ये जो है, तो ये अगर आपको लगता है कि घातक है और ये अगर समझो ठीक नहीं है, तो वो हिसाब से ये मतलब आप ये कर सकते हैं. बट कभी-कभी ऐसे भी होता है कि समझो अगर आपका दूध वाला या ये है, उसके साथ वो अगर आपके पास समझो 20 साल आ रहा है कॉन्स्टेंटली, तो हाँ, तो उसके साथ आपकी रिलेशनशिप अलग ही हो जाती है. तो वैसे मैं बोल रही हूँ जस्ट लाइक अपनी मेड वगैरह जो 15 साल. हाँ, बस वो मैं बोल रही हूँ, वो मैं आपको बोल रही हूँ. और अगर आपको वो विश्वास होगा तो ही आप करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे. That's good. Yeah. Good talk. Thank you, Amrita. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thanks a lot. It was really a pleasure to hear you. It was a pleasure hearing you. Really. It was wonderful. Thank you so much. Thank you so much. Very motivating. Yeah. Thank Thanks you. a lot. See you once again. See you once again, Amrita. Yeah. Thank you. Come again. Take care. God bless you and all that you do for the Thank you. seniors. Want to discuss with you more. It leads us to introspection.